Hi guys, this is Tapti Sharma and welcome to Breathitation. You all must have heard these sentences like, where is your awareness dude? Aware हो या नहीं हो situation के? So, ये awareness होती क्या है यार? So let's try and figure out what is awareness. So as show का नाम breathitation है, so let's do some breathing today. Okay? So there are few things that I'll tell you before starting breathing. First is like if you're sitting, just correct your posture, back straight. And if you're lying down, just relax your body, rest your hands. And if you want to close your eyes, then close your eyes. If you don't want to, then rest your eyes somewhere in front of you and relax them. And first thing is you have to breathe from your belly. Second, you have to breathe from your nose. And third thing is you have to breathe very slowly and very gently. और इतना slow होना चाहिए कि आपके नाक के बाल भी नहीं हिलने चाहिए. Okay? Very slow and very soft. Okay? Now, if you feel breathlessness in between, तो normal breathe करके breathe कर लो and then again start. Okay? So let's do this. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Slowly and softly breathe in. Breathe out. Beautiful. One more time. Breathe in. Breathe out. Good going, guys. Slowly breathe in. And breathe out. Now focus on the center of your head. आँखों के पीछे और दोनों कानों के बीच में. That is the center of your head. Just focus there. Be aware of that part. Now visualize a blue color dot over there. Yeah. Now move that dot to your right ear. Feel your right ear. Be aware of your right ear. Beautiful. Now bring back dot to the center. Now move that dot to your left ear. अपने लेफ्ट कान पे देखो उस डॉट को. Feel that dot. Feel your left ear. Breathe करते रहो. Now bring that dot again to the center. Now feel back of your head. Bring that dot to the back. Feel the back part of your head with that dot. Now again, bring that dot back to the center. Now be aware of your eyes and bring that dot in the center of your eyes, center of both your eyes. Beautiful. Now again bring that back to the center. Now drag that dot to the bottom of your head, जहाँ से गर्दन start होती है. Just feel, be aware of this part with that blue dot. Now again bring that back to the center of your head. Going good, guys. Now bring that dot to the top of your head. Feel your head. Feel your crown. Now bring that back to the center of your head.
Now feel your right shoulder. Now bring that dot to your left shoulder. Feel your left shoulder. Beautiful. Now bring that back to the center of your head. Now feel your heart and bring that dot to your heart. Be aware of your heart. Feel your skin and slowly open your eyes. Beautiful guys, beautiful. So what we recently did is हमने अपनी awareness को, हमने अपने focus को अपने different body part पे feel किया और अपने different body part पे travel कराया, right? So that is body awareness, nothing else. So that was simple, right? I don't know simple है या नहीं, but yeah, like नहीं aware होते, but हमने consciously अपने different part पे focus किया और अवेयर हुए उन सब पार्ट के, राइट, यूजिंग अ डॉट. सो या दिस वॉज बॉडी अवेयरनेस. ऐसे ही बहुत डिफरेंट टाइप की अवेयरनेस होती है दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर अवेयर ऑफ देम, राइट. सो हमें पता होना चाहिए उन सब के बारे में सो दैट वी कैन कॉन्शियसली वर्क ऑन देम. सो फर्स्ट ऑफ देम इज लोकेशन अवेयरनेस. ओके, सो व्हाट इज लोकेशन अवेयरनेस इज लाइक अगर आप लोकेशन के अवेयर नहीं हो सो यू विल फील स्पेसी, आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप एम्प्टी फील करोगे, आप लाइक रिपीटेडली सेम इमोशंस फील करोगे, बार बार उन इमोशंस में जाने लगोगे और आपसे मिस्टेक्स होने लगेंगी, आपको लाइक चोट लगने लगेगी या फिर आप बार बार चीज़ों से टकराओगे. सो दिस इज़ अ लोकेशन अवेयरनेस. लेकिन अगर आप अवेयर हो लोकेशन के देन यू आर लिविंग इन प्रेजेंट, यू आर एक्सपीरियंसिंग योर प्रेजेंट, आप अपने आसपास से अवेयर हो, यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. सो डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस होंगे अगर आप लोकेशन अवेयरनेस से अवेयर हो तो. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ अवेयरनेस इज टाइम अवेयरनेस. नाउ व्हाट इज दिस? टाइम अवेयरनेस इज अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, राइट, पास्ट की ही चीज़ों में स्टक हो, देन यू विल बी डिप्रेस्ड, आप डिप्रेस फील करोगे. इफ़ यू आर थिंकिंग सो मच अबाउट योर फ्यूचर देन यू विल बी एंशियस, राइट. सो आप स्टक हो जाओगे इन इमोशंस में, स्टक रहोगे हमेशा, बार बार जाओगे उस चीज़ में. सो दिस इज़ टाइम अवेयरनेस. लाइक इफ़ यू शुड बी अवेयर कि आप किस टाइम में हो. इफ़ यू आर इन प्रेजेंट तो आप ज़्यादा काम रहोगे, आप रिलैक्स्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे मोमेंट में एंड लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करोगे कोई भी. एंड यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग थिंग एंड यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग थिंग्स ईजीली, राइट. सो या दिस वॉज द टाइम अवेयरनेस. एंड नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल अवेयरनेस. नाउ व्हाट इज़ फिजिकल अवेयरनेस? अगर आप फिजिकल बॉडी के या फिजिकली अवेयर नहीं हो उस केस में आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा जजमेंटल होगे खुद के लिए, दूसरों के लिए. सो यू शुड बी अवेयर फिजिकली, क्योंकि हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो हम फिजिकली करते हैं, राइट. थॉट्स, आइडियाज़, हर चीज़ ब्रेन में होती है, वेव्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होती है, एनर्जी के फॉर्म में होती हैं. लेकिन हम उन्हें एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, हम रियलिटी में कैसे देखते हैं, राइट, फिजिकली अवेयर होके. सो फिजिकल अवेयरनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप फिजिकली अवेयर होगे सो विल बी वेरी एथलेटिक, आप बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे चीज़ों को, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे, आप दूसरों को एक्सेप्ट कर पाओगे. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ फिजिकल अवेयरनेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज एनर्जी अवेयरनेस. Okay, so what is energy awareness? Like there are different type of energies and emotions जो हम फील करते हैं, लाइक गिल्ट, पेन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब अलग अलग टाइप के इमोशंस हैं. तो हमें अवेयर होना चाहिए कि हम किस टाइम पे किस एनर्जी में हैं. इट्स नॉट बैड, कोई भी इमोशंस बैड नहीं होता, कोई भी एनर्जी ख़राब नहीं होती है. इट्स जस्ट यू शुड बी अवेयर, राइट. इसीलिए एनर्जी अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है.
आप अवेयर होना चाहिए कि ओके डूड, यू आर फीलिंग एंगर, आप अभी एंगर में हो, या फिर यू आर फीलिंग गिल्ट, या फिर यू आर फीलिंग बैड, फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी, एनीथिंग, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ योर एनर्जी कि आप फील क्या कर रहे हो. एंड इफ़ यू स्टार्टेड एनालाइजिंग, या फिर आप अपनी एनर्जी अवेयरनेस के बारे में अवेयर रहोगे, देन यू विल स्टार्ट लिविंग इन अबैंडेंस. आप फ्रीक्वेंटली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, आप फ्रीक्वेंटली चीज़ों को फील कर पाओगे, आप इन्जॉय कर पाओगे अपनी लाइफ. क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को फील करते हो तो इट्स ईजी फॉर यू टू ब्रिंग एनी इमोशंस एंड गो अवे फ्रॉम एनी इमोशंस. सो ये आपको बहुत पावर देता है, बहुत पावर. आप जब चाहो तब वो चीज़ फील कर सकते हो. सो दैट्स रियली पावरफुल एंड मैजिकल. नेक्स्ट इज मेंटल अवेयरनेस, राइट. आप मेंटली कहाँ हो, राइट. आप कई बार रूमर्स में हो, या फिर परेशान हो रहे हो, एजिटेट हो रहे हो. सो लाइक मेंटली आप किस जगह प्रेजेंट हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर मेंटल अवेयरनेस, तो आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर होगी, आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर होंगे, आपके गोल्स बहुत क्लियर होंगे, और आपको पता होगा कि आपको कब, कहाँ, कैसे चीज़ करनी है, राइट. सो मेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइम पे क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें, राइट. एंड इफ़ यू आर good at it, then you are like clear about your intentions एकदम focused रहेंगे, and you'll be able to get anything, right. You have mental power with you then. Next type of awareness is listening awareness. Yes dude, बहुत सारे लोग सुनते नहीं हैं. It's very important to listen. अगर आप ठीक से सुनोगे नहीं सामने वाला क्या बोल रहा है, या सामने कोई भी सिचुएशन हमें क्या बोलना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, इन दैट केस यू विल मिस अपॉर्चुनिटीज़. तो अगर आपने कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस की है, देयर आर मोर चांसेस कि आप अपनी लिसनिंग अवेयरनेस के अवेयर नहीं थे, कि यू आर नॉट लिसनिंग. इफ़ यू आर गुड एट इट, सो आप अपने थॉट्स को बहुत ईजीली मूव कर पाओगे, आप अपनी लाइफ बहुत फ्लो में एक्सपीरियंस कर पाओगे, और आप हमेशा सही जगह और सही समय पे होगे. दिस इज़ द पावर ऑफ लिसनिंग अवेयरनेस. एंड द लास्ट वन इज़ इंट्यूटिव अवेयरनेस, राइट. हमेशा हमें अंदर से इंट्यूटिव आवाज़ आती है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. यू शुड नो, यू शुड मेक डिफरेंस बिटवीन देम, कि आप ये कोई और किसी और का थॉट है, या फिर ये आपके अंदर की आवाज़ है. इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर इंट्यूटिव अवेयरनेस, देन यू विल बी एबल टू क्लियरली मेक डिफरेंस बिटवीन देम, राइट. सो अगर आप इंट्यूटिवली अवेयर नहीं हो, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट लिसनिंग योर वॉइस. एंड इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग योर वॉइस, आप कुछ और करोगे, किसी और का थॉट सोच के उसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड. आपसे मिस्टेक्स बहुत होंगी, क्योंकि वो आप नहीं करना चाहते हो, राइट. एंड यू आर डूइंग इट. आपकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन. बट अगर आप इंट्यूटिवली अवेयर हो, इन दैट केस यू विल बी रिलैक्स्ड, बहुत आराम से डिसीजन लोगे, बहुत क्विक प्रोग्रेस करोगे, एंड यू विल ऑलवेज बी इन फ्लो. सो या गाइज, दिस वाज इट. सो इतने टाइप के अवेयरनेस होते हैं दैट वी डिस्कस्ड. 7 टाइप ऑफ अवेयरनेस वी डिस्कस्ड. लोकेशन अवेयरनेस, टाइम अवेयरनेस, फिजिकल अवेयरनेस, एनर्जी अवेयरनेस, मेंटल अवेयरनेस, लिसनिंग अवेयरनेस एंड इंट्यूशन अवेयरनेस. सो हमेशा इन चीज़ों से अवेयर रहो, इन पे काम करते रहो, एंड लाइफ अपनी अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करते रहो. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. गुड नाइट फॉर नाउ, एंड मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट एपिसोड में. बाय बाय.